Hi students, welcome to your lecture number 25, and today we will be dealing with a few more questions of spotting errors. Since this is a topic which requires a lot of practice, so I have brought forward another presentation for you all so that you can practice more questions, right? And like I said it in the previous lecture, this is an amalgamation of all the conceptual topics that we have done so far. सो सारे रूल्स जितने भी अभी तक हमने किए हैं वो सारे आज की क्लास में अप्लाई होंगे. So I hope that you all have revised because those rules are very, very important and you will see why I am saying so. And yesterday in the doubt session, only six of you joined, although I know there are many of you who wanted to ask questions. So the next time we post a doubt session link in the group, please all of you must join so that you can ask your doubts and then clarify them, right? Every Sunday I'll be hosting the doubt session, so you all can ask me any question that you wish to. Okay, so let's start with today's class. And in today's class we will deal with questions. पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़े से ट्रिक्स और टिप्स बताए थे. आई होप कि आपको वो याद होंगे कि मैंने कैसे बोला था कि आपको सेक्शनली पढ़ना है सारा क्वेश्चन, एक साथ नहीं पढ़ना. एंड लुक फॉर दोज एरियाज जहाँ पोटेंशियल एरर्स आज तक आए हैं हमेशा, उनको देखो. यूजुअली वहीं पे आपको जो एरर है वो मिल जाएगा. एंड नो एरर भी आंसर हो सकता है, राइट? So look at that as well. And all your questions are previous year questions so that you understand what is the level that you should prepare according, right? So ये mock नहीं है, this is previous year paper. So you should see what kind of questions you are getting over here. Okay. So let's start. Look at your first question. Remember, you have to read it section by section and then answer the question. And I will give you 30 seconds per question. So read the first question and then try to identify the error. और कल की तरह आज भी सबने मार्क्स बताने हैं. Look at the question, read it sectionally and then try to find out where is the error. काफी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो. ओके, सो द एरर इज इन पार्ट बी. रिटर्न और बैक एक साथ यूज नहीं होते, या तो सिर्फ बैक यूज करो या अकेला रिटर्न. एक साथ दोनों को यूज नहीं करना. दिस इज अ सुपरफ्लुअस सेंटेंस, मतलब एक ही टाइप की चीज को दो बार लिख देना. सो बी पार्ट हैज द एरर फर्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन, रीड इट सेक्शनली. ध्यान से पढ़ो, सारी चीजों को ध्यान में रखो. कंजंक्शंस, prepositions, योर टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, हर चीज को ध्यान से देखो एंड देन फाइंड आउट द एरर. क्या एरर है यहाँ पे? सो द एरर इज इन पार्ट सी. लुक, यहाँ पे लिखा है इंक्वायर्ड, विच इज क्लियरली टेलिंग अस दैट दिस इज इन पास्ट टेंस, और हैज इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे हैड आएगा. सी, सो सिंपल. पर हम इतनी कॉमन चीजें भी नहीं ढूंढ पाते बिकॉज हम ध्यान से नहीं पढ़ते. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. अब देखो, काफी सिंपल एरर्स हैं. ध्यान से पढ़ो, कुछ चीजें आपकी कॉमन सेंस भी आपको बताएगी कि ऐसा होना चाहिए. रीड इट नाइसली. द आंसर इज पार्ट बी. इट शुड बी आउटडोर्स. ऐसा आना चाहिए साथ में. वेन आई वेंट आउटडोर्स आई फाउंड फ्रॉस्ट एवरीवेयर. अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था. इस द वर्ड आउटडोर हैज अनदर इन्फ्लिक्शन, बट व्हेन आई वेंट आउटडोर्स, जब मैं बाहर गई, उसको आउटडोर्स ही लिखते हैं, आउटडोर नहीं लिखते. दिस इज द एरर. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन. दिमाग को खुला रख के आंसर करो. क्या होना चाहिए एरर?
So the answer is part C. These are his concluding remarks. Conclusion नहीं, concluding. These are his concluding remarks. Next question. Next question में कहाँ error है? Part by part पढ़ो, you will be able to identify. So the error is in part A. The shopkeeper offered to either exchange the goods or refund the money. The sequence in which the words is written is wrong. It should be the shopkeeper offered to either exchange the goods or refund the money. Error is in part A. Next question. ध्यान से पढ़ो सारे क्वेश्चंस को. So the error is no error. There is no error in this statement. सी, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो देखो आपके सामने है, नो एरर वाले क्वेश्चंस भी होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. धीरे धीरे पढ़ो सेक्शनली एंड देन आंसर. द आंसर इज इन पार्ट सी. यहाँ एन नहीं आएगा. क्यों? आप बोलोगे यहाँ वावल लगा हुआ है मैम, एन आना चाहिए. बट एट आर्म्स लेंथ इज एन इडियम. दिस इज एन इडियम और उसमें एन नहीं है, सो वी कैन नॉट मेक आवर ओन रूल्स. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या होना चाहिए आंसर? ध्यान से पढ़ो इसको. The answer is in part C. He did not know as much as he claimed he knows. Knows आना चाहिए यहाँ पे. This is the part where there is error. Next. I am not reading the sentences क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कहाँ पे डाउट है और कहाँ पे आना चाहिए एरर. इसलिए खुद पढ़ो. ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को. क्या एरर है यहाँ पे? There is no error in this question. Again, the answer is no error. सारे टेंसेस सारा कुछ बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है. इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से पढ़ा करो. नेक्स्ट. सारे रूल्स आपके यहाँ पे अप्लाई होंगे. कीप योर रूल्स इन योर माइंड व्हेन यू आर रीडिंग सेंटेंसेस. अगले क्वेश्चन को देखो. द आंसर इज इन पार्ट सी. देखो दिस इज हैबिचुअल है ना, बार बार रिपीटेडली की गई चीज. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंपल पास्ट. तो माई फ्रेंड गोज टू अ मूवी एवरी वीक. इज गोइंग यहाँ पे नहीं आएगा. राइट. नेक्स्ट. रीड द नेक्स्ट सेंटेंस एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई अगर वहां पे कोई एरर है तो. अगेन रीड इट वन बाय वन. ओके, सारे सेक्शंस को अलग अलग से पढ़ो. यू मे फाइंड अ एरर इन सम सेक्शन और यू मे नॉट इवन नॉट फाइंड एन एरर एज वेल. तो ध्यान से पढ़ो. हर सेंटेंस हर सेक्शन को अलग अलग से पढ़ो. इज देयर एनी एरर ओवर हियर? So the answer is no error. There is no error in this question. अब आगे देखो. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. आराम से पढ़ो, ध्यान से सारे सेक्शंस को देखो.
ये आपने पहले भी देखे होंगे यहाँ, अगर आपने कभी मॉक्स यहाँ प्रैक्टिस किए है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने वहां पे भी देखे होंगे। आंसर इज इन पार्ट सी। लेस्ट आई शुड मिस द ट्रेन, नॉट नहीं आएगा, लेस्ट के साथ नेगेटिव कोनोटेशंस नहीं आते। ओके, लेस्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेस्ट इन इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव और नेगेटिव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सुपरफ्लुअस। इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव कोनोटेशन नहीं जोड़ते। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको पढ़ो पार्ट बाय पार्ट। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर ओवर हियर? क्या आना चाहिए यहाँ पे आंसर? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो अगले सेंटेंस में आप देखो यहाँ पे क्या एरर है। सारे पार्ट्स को अलग अलग टाइम, अलग अलग से पढ़ो, यू विल डेफिनेटली फाइंड द एरर। द आंसर इज इन पार्ट बी। दैट वेदर नहीं आएगा, दैट नहीं आता, वेदर अपने आप में ही दैट को लेके चलता है, सो दैट नहीं आएगा यहाँ पे। आई वॉन्टेड टू सी वेदर दे हैड एक्चुअली रेड द नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे और एक एक करके पढ़ो। इतने कॉमन एरर्स हैं, कई बार हमारी, हम जब एक साथ पढ़ते हैं ना तो हम मिस कर जाते हैं कि यहाँ पे एरर है। इसीलिए मैं बोलती हूँ सेक्शनली पढ़ना इसीलिए इफेक्टिव है। ध्यान से देखो सारे सेक्शंस को। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्ट सी। एज नहीं आएगा यहाँ पे। कंसिडर्ड हिम ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, देर इज नो नीड ऑफ यूजिंग एज ओवर हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? सारे सेक्शंस को अलग अलग से पढ़ो। हैविंग फिनिश्ड द पेपर अर्ली, एक पार्ट, सिर्फ पहले इसको एनालाइज करो, फिर पार्ट बी को, फिर पार्ट सी को, और फिर नो एरर। नो एरर को तो चलो एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बट इन तीनों सेक्शंस को अलग अलग से पढ़ो। इज देयर एनी एरर इन दिस क्वेश्चन? देयर इज नो एरर। द आंसर इज नो एरर। देखो कितने सारे नो एरर के क्वेश्चंस हैं, और ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस में नो एरर भी आंसर रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? ये भी पिछले कुछ क्वेश्चंस की तरह है। एरर इज इन पार्ट सी। मैनर्स वर्ड आता है, जैसे आउटडोर्स है ना, वैसे मैनर नहीं लिखते, मैनर्स लिखते हैं हम। सो द एरर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए किसी की। इसको पढ़ो, मैंने आपको ये इनफैक्ट ये वर्ड भी पढ़ाया हुआ है और इसका रूल भी मैंने आपको समझाया हुआ है प्रॉपरली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, इफ यू रिमेम्बर। सो ये गलती नहीं होनी चाहिए। द आंसर इज इन पार्ट बी। न्यूज इज सिंगुलर, आर नहीं इज आएगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, क्या कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पे? ये शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो आप देखो यहाँ पे क्या एरर है। द एरर इज इन पार्ट सी, टू कोप अप विद। अप मिसिंग था यहाँ पे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, बट स्टिल आई वुड से ये डुएबल था, इतना भी मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या एरर है? ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखो। एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव कॉमन सेंस बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इवन आफ्टर योर एग्जाम। एसएसबी में भी बहुत काम आएगी, सो बिल्ड ऑन योर कॉमन सेंस। द आंसर इज इन पार्ट बी। प्लेस नहीं स्पेस। स्पेस होती है कंपार्टमेंट में, प्लेस नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यहाँ पे देखो क्या एरर है। पार्ट बाय पार्ट पढ़ो, कुछ ना कुछ और मिलेगा आपको जहां पे एरर है। द एरर इज इन पार्ट सी। एनी अदर पोएट, कंपैरिजन हो रहा है ना, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो तो लिखना चाहिए, है ना? तो यहाँ एनी अदर पोएट, क्योंकि ग्रेटर इज अ कंपैरेटिव टर्म। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्वेश्चंस। आपकी डेली वोकैबुलरी आज मैं इसलिए लेके नहीं आई क्योंकि मेरे पास उतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं थे आज जितने चाहिए। तो मैं कल, जो मैं आपको कल वीडियो डाल के दूंगी उसमें आई विल ब्रिंग यू डेली वोकैबुलरी।
एंड आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, सो आई वांट यू ऑल टू टेल मी योर मार्क्स आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस, राइट? एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आप इस क्लास का पीडीएफ 99 रुपीज दे के ऐप में से खरीद सकते हो फॉर योर ओन प्रैक्टिस सेक, राइट? So please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much and have a great day. Thank you everybody.